اور اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے مرکزی حکومت سے گزارش کی ہے کہ وہ 1987 کی انتخابی دھاندلی کی انکوائری کرائے۔ سجاد لون کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی کارستانی کے بعد ٹارچرز کے سلسلے نے یاسین ملک جیسوں کو ملیٹنسی میں جھونکا۔ سوشل میڈیا پر دستیاب یاسین ملک کے تاثرات پڑھتے ہوئے سجاد غنی لون نے جیل میں قید JKLF لیڈر کے منصفانہ ٹرائل کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس دوران PDP پر مخبری کا الزام بھی لگایا۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ یاسین ملک کیا بندوق لے کر پیدائشی بندوق بردار تھا یا ماحول نے بنایا؟ ہم پچھلے 30 سال سے 20 سال سے ہماری پارٹی کہتے آ رہی ہے کہ جو یہاں لوگ مرے ہیں، جو قبریں یہاں قبرستان اتنے آباد ہوئے ہیں، اس کا جو بیسک سورس ہے وہ 1987 کی رگنگ آف الیکشنز۔ اپیل ہے پھر سینٹرل گورنمنٹ سے کہ ایسا کیا ہے، کیا پردہ ہے جو آپ 87 سے اٹھانا نہیں چاہتے؟ کیوں آپ 87 پر اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں جو 87 کے نوجوان ہیں، میرے ہم عمر ہوں گے، وہ یا وہ قبروں میں ہیں، جنہوں نے انقلاب، جنہوں نے بولا کہ ڈینائی کیوں کی ڈیموکریسی، چوری کیوں کی الیکشنوں میں، یا وہ قبروں میں ہیں یا جیلوں میں ہیں آج بھی۔ یاسین ملک بھی ان میں ایک ہے۔ ایسی کیا پردہ داری ہے؟ چلے کانگریس کا بولتے وہ اس میں کوئی انکوائری اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھے، لیکن آپ تو تب پاور میں تھے ہی نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں ہم سب بدلانا چاہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں پرانا سب غلط ہے۔ آج جو آپ NIA کو لاتے ہیں 1990 میں اگر کسی نے سلام کیے کسی کو، اس کو پوچھ تاچھ کرتے ہیں، تو 87 میں کیا ہے؟ کیا پردہ داری ہے؟ کیوں آپ نیشنل کانفرنس، اس وقت کے نیشنل کانفرنس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب سے آج تک ان پر کوئی سوال اٹھائے تو ان کا کہنا ہوتا ہے یا یہ ایجنسیوں کے ہیں، اور آج کل نیا ریکارڈ آیا کہ بھئی یا تو یہ پھر دلی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ وہ ہے جس نے 25-30 سال جیل میں نکالے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جس کو ایک عمر قید سزا لگی ہوئی ہے، اور اس کو تو آپ نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ آپ خود اقتدار میں رہے عمر بھر۔ کیوں کیا آپ نے اس کو ٹارچر؟ اس کا ذرا جواب تو دیں، کیوں ٹارچر کیا؟ کیوں ایسے اور ہزاروں نوجوانوں کو ٹارچر کیا؟ جب 90 آیا تو 2 الفاظ نئے آئے، ملیٹنٹ اور مخبر۔ انہیں مخبری کی ہے اور کیا کیا؟ اب اس کو کتنا ہی ہے، اب مخبری کرے وہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی ان کو روک، لیکن بولے ہیں کہ یہ مخبر ہیں، وہاں سے بولتے ہیں ریکنسلیشن کرو، صلاح الدین سے بات کرو، ملٹن سے بات کرو، پاکستان سے بات کرو، کوئی بیان نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ مخبر ہیں تو یہ والی باتیں مت کریں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید الطاف بخاری نے آج کہا کہ NC اور PDP کے پاس کشمیری عوام کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ وہ اس بار بھی کشمیری عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے 1 سال بعد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ الطاف بخاری واپس دلائے گا۔ الطاف بخاری نے ہندواڑہ میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ کارکنوں نے الطاف بخاری کا زبردست استقبال کیا اور الطاف بخاری کے قافلے میں گھڑ سوار بھی شامل تھے جو پارٹی صدر کے ہمراہ ہندواڑہ پہنچے۔ کیا آنے والا جو الیکشن ہے بگل تو بچ گیا ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ہے بگل بجا ہے، ابھی بہت دور ہے یا صاحب الیکشن۔ یہ تو ایک عوامی مہم کا ہمارا سلسلہ ہے، مجھے نہیں لگتا ہے دلی والے سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑا احسان ہے ہم پہ۔ سوچنے دیجئے، ہم فی الحال اپنے لوگوں کے پاس جاتے رہیں گے، ان کی دقتیں سن کے ان کا ازالہ کرتے رہیں گے۔ جس طرح ہم کہیں کہ PhD اتحاد کر کے الیکشن میں آ جائے گی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الطاف بخاری اللہ کرے، اللہ ضرورت پڑے آپ کو بھی آپ یہ اتحاد کسی پارٹی؟ نہیں، میں کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کروں گا، میرا اتحاد لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا یہاں لوگوں کا جیسا مجمع ہے، اللہ کے فضل سے ہمیں لوگ بھرپور اکثریت سے کامیاب کر دیں گے۔ NCN کی PhD کا آپ کہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایجنڈا یہ ہے کہ ہم دفعہ 337 5 اگست کے فیصلوں کو واپس لانے کی۔ دیکھیں کون نہیں چاہتا ہے 5 اگست کا فیصلہ واپس آئے، لیکن 5 اگست کا فیصلہ ان سے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے 3 MP ان کے 5 اگست کے بعد ایک ریزولوشن نہیں، ایک پرائیویٹ ممبرز بل نہیں انہوں نے لائی، ایک سوال نہیں اٹھایا کیا وہ کہتے ہیں وہ واپس لائیں گے۔ اور جہاں تک واپس لانے کی بات ہے وہ سپریم کورٹ دے سکتا ہے۔ جو اس میں تھا جو ہم سے چھینا گیا وہ الطاف بخاری نے، چاہے زمینوں کا تحفظ، نوکریوں کا تحفظ، وہ الطاف بخاری اور اپنی پارٹی نے واپس لایا۔ انشاءاللہ 1 سال حکومت بننے کے بعد اسٹیٹ ہوڈ بھی واپس لائیں گے۔ آپ لگاتار کہیں کہ انجینئر رشید کی رہائی ہوگی، باقی پارٹیاں بات نہیں کرتی ہیں تو صرف الطاف بخاری ہی بات کرتے ہیں؟ الطاف بخاری ہی یہاں سب کی بات کرتا ہے۔ جب یہ لیڈر بند تھے میں نے ان کو چھڑایا۔ ایک آخری آدمی ہے جو بے گناہ ہے،
جس کو ریلیز کرنا چاہیے, اور اللہ کے فضل سے میں لاسٹ کے دن تک اس کے لیے اپیل بھی کرتا رہوں گا, محنت بھی کرتا رہوں گا. مجھے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, اس کی اپنی جماعت ہے, وہ اپنی جماعت میں کیا سیاست کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. لیکن نظر بند ہے, ایک عام کشمیری ہے میرے ساتھ, میرا کولیگ تھا وہاں اندر, اس نے بھی حلف ہندوستان کے آئین پہ اٹھایا, میں نے بھی اٹھایا. تو یہ کیا بات ہے کہ وہ بند رہے. وزیر دفاع کل جموں پہنچیں گے. شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کے اعزاز میں منعقد ہونے والی تقریب میں راجناتھ سنگھ شرکت کریں گے. بی جے پی کے ترجمان پریا سیٹھی نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع کے دورے کے بارے میں تفصیلات بتائی. انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع کے دورے سے جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے حوصلے بلند ہوں گے, کیونکہ عام لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ فورسز قیام امن کے لیے کوشاں ہیں. ان کا دورہ جو ہے کل ایک وشیش کاریکرم جو شہیدوں کے نام, جو ہمارے شہید ہوئے ہیں جتنے سینک, ان کے نام پر وشیش طور پر اس کاریکرم میں آ رہے ہیں. ایک بہت ہی اتساہ وردک ایک ماحول ہے, کیونکہ جموں کے اندر بہت سمے کے بعد ان کا دورہ ہو رہا ہے, اور یہ دورہ ان سیکیورٹی فورسز کا منوبل بھی بڑھاتا ہے, عام ناگرکوں کا بھی بل بڑھاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں ایک مانسکتا جو پاکستان لے کر چلتی ہے اس کے اوپر بھی ایک کہیں نہ کہیں ایک دباؤ ہوتا ہے. پریا سیٹھی نے بتایا کہ راجناتھ سنگھ جموں کشمیر کے سینئر بی جے پی لیڈروں سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں, تاکہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کی حکمت عملی تیار کی جا سکے. سمے کے اندر کس طرح سے رننیتیاں بنیں گی, کس طرح سے رننیتیاں بنائی جائیں گی, اس کے اوپر بھی ایک وشیش جو پرکریا ہے وہ یہاں پر شروع ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر الیکشنز کا بھی بگل ہے, اور کبھی بھی الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے, کیونکہ الیکشن کا جو کمیشن ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, اور جس طرح سے الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا, مجھے لگتا ہے ایک بہت مہتوپورن دورہ جائے مانیہ راجناتھ سنگھ جی کا. ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے کا کہنا ہے کہ ہر گھر ترنگا ایک رضاکارانہ تحریک ہے. آج سری نگر میں ایک تقریب کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جھنڈے معمولی معاوضے پر دستیاب کرائے جائیں گے, اور قومی پرچم لہراتے وقت فلیگ کوڈ پر عمل کرنا پڑے گا. یہ ایک ٹوٹلی والنٹری بیسس پر اور یہ ہے موومنٹ ہے, اس میں کہیں بھی کسی بھی طریقے کا کمپلشن نہیں ہے, نہ اس میں کوئی انسسٹنس ہے. ہر کوئی شہری جو اپنا گھر پر, اپنے شاپ پر باقاعدہ فلیگ کوڈ فالو کرتے ہوئے فلیگ ہوسٹ کرنا چاہتا ہے 13 تاریخ سے 15 تاریخ, یہ 3 دن کے بیچ میں وہ ویلکم ہے. اس کو ہم جو ہے بہت ہی ریزنیبل اس پر جو ہے وہ اپلبدھ کرائیں گے کاسٹ پر. صرف یہ ہے کہ فلیگ لینے کے بعد فلیگ کوڈ کا فالو ہو, اس لیے جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی کیسے اس کو پھہرانا ہے, کب اپ کرنا ہے, کب ڈاؤن کرنا ہے, تو وہ جو ہے اس کو بتائیں گے تاکہ جو فلیگ کوڈ ہے اس کا کمپلائنس. پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر عبدالغنی وکیل نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے حوالے سے عوام دوست پالیسیوں اور واضح ویژن کی وجہ سے نامور شخصیات بھی پیپلز کانفرنس سے ہاتھ ملا رہی ہیں. عبدالغنی وکیل نوپورہ سوپور میں پارٹی ورکرز کے کنونشن سے خطاب کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے. عبدالغنی وکیل کا کہنا ہے کہ لوگ جموں کشمیر میں انتخابات کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. عبدالغنی وکیل کے مطابق ان کی پارٹی کے چیئرمین سجاد غنی لون نے بہت سے لوگوں کو ان کے ساتھ ملانے کا کام کیا ہے تاکہ انہیں امن اور خوشحالی کی طرف راغب کیا جا سکے. عبدالغنی وکیل نے ہر گھر ترنگا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں اور لوگوں پر زبردستی صحیح نہیں ہے. ہماری نیشنلٹی ہندوستان ہے, ہمارے پاسپورٹ ہندوستان ہے, اور اگر ان کو خود ڈاؤٹ ہے یہ بہت ہی بدقسمتی ہے. اس لیے جو بھی یہاں مرکزی سرکار سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسے اقدامات کریں جس اعتماد سازی کے, جس سے لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو, لوگ زیادہ سے زیادہ مین سٹریم کے نزدیک آ جائیں. اور وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم یہ بھی ان سے بار بار کہتے ہیں, آپ اسمبلی الیکشن کا جو بندورہ پھرتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن اس اسمبلی انتخابات میں ہوں تو وہ اعتماد سازی کے اقدامات کریں. سب سے پہلے جو اقدامات ہیں اسٹیٹ ہوڈ میں واپس کریں, اور ساتھ ہی اس وقت 60,000 جو ڈیلی ویجر ہیں پریشان ہیں ان کو مستقل کریں.
सियासी कैदी है उनको रहा करें, और इसी तरीके से हमारे 2 इंडस्ट्रीज, खासकर जो फूड इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, महफूज होकर आ गई, उनको रिजेनरेट करें, और ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें। अगर बजाय उसके वो ऐसे दबाव दोनों का इस्तेमाल करें जिससे लोग मेन स्ट्रीम के नजदीक आने के बजाय दूर हो जाए, ये बहुत मुल्क के लिए बड़ा खतरा है, और जो भी मुल्क के मफाद में नहीं होगा, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस उसका डट कर मुकाबला करेगी। और आगे बढ़ते जिला सांबा के न्यू बस स्टैंड सांबा इलाके में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 3 छोटे बच्चों समेत एक खातून की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हुए हैं। एक पैसेंजर ऑटो में 18 लोग सवार थे। वो शादी तकरीब में शिरकत के लिए अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे। जैसे ही न्यू बस स्टैंड पहुंचे तो कठुआ की तरफ से तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। जख्मियों को अस्पताल लाने पर 3 बच्चों और एक खातून को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। 15 अफराद जख्मी थे, जिनमें से 7 लोगों की हालत खराब देखकर उन्हें जम्मू रेफर कर दिया गया। वहीं डीसी सांबा ने रात के वक्त सांबा अस्पताल पहुंचकर हादसे में जख्मी हुए लोगों का हाल चाल जाना। 7 लोग यहाँ पे हैं जो कि मैंने अभी खुद देखा स्टेबल हैं। तो इसमें जो भी सभी को ये डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी, और जीएमसी में भी हमारी बात हो गई है। तो जो भी इनके लिए जो भी असिस्टेंस होगी, जो कुछ भी हमारी तरफ से पॉसिबल होगा, वो सारा हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे यहाँ पे हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारे डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने इमीडिएटली उनको अटेंड किया और बहुत टाइमली जो क्रिटिकली इंजर्ड थे उनको इमीडिएटली रेफ़र कर दिया गया जीएमसी में, और वहाँ पे भी बात कर ली ताकि उनको इमीडिएटली अटेंड भी कर लिया जाए। और यहाँ पे भी जैसा आप खुद भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी पूरी जो ट्रीटमेंट है वो दी जा रही है और वो स्टेबल हैं। जिला पुलवामा के रखलेता इलाके में बीती शब एक कार खाई में गिर गई। कार पुलवामा से संगम की तरफ जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तारी के सबब रखलेतर के मकाम पर सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में गिर गई। मकामी लोगों ने कार में सवार 2 अफराद को बहिफाजत निकाला, जिनको मामूली चोटें आई हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हजारों लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि गुज़श्ता रात से जिला रामबन में होने वाली शदीद बारिश के बाद नेशनल हाईवे के मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोदे गिराए हैं और चट्टानें भी गिरी हैं, जिसकी वजह से सड़क बंद कर दी गई है। सुबह सवेरे मौसूला इत्तलात के मुताबिक पहलगाम के रास्ते जा रहा श्री अमरनाथ यात्रा का एक काफिला जिला उधमपुर में मंड के बिखानगाला पर रोक दिया गया। नेशनल हाईवे 44 बंद होने की वजह से यात्रियों को रोका गया। कुछ यात्रियों को जम्मू बेस कैंप की तरफ वापस जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। इसी बीच बालतल से जाने वाले यात्रियों को यात्री निवास चंद्रकोट पर रोक दिया गया। और हम पूरी टीम के साथ बाबा बर्फानी का दर्शन करने आए हैं, और हम इस समय उधमपुर में रुके हुए हैं क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। और हमारे साथ 12 लोग हैं और कम से कम 40 से 50 गाड़ियाँ और यहाँ पर रुकी हुई हैं, जो कि अग्रिम सूचना तक यहाँ पर उनको रुकने के लिए बोला गया है। दर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं गोंडा से। हम लोग सुबह 3 बजे जत्थे के साथ में निकलने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग पीछे रह गए और सुनाई पड़ रहा है कि जो पहला जत्था निकला था उसको भी लैंडस्लाइड की वजह से उधमपुर से वापस भेज दिया गया जम्मू के लिए। और हम लोग भी अभी पहुंचे यहाँ पे तो काफी गाड़ियों के साथ में हम लोग को भी रोका गया है। गुंडू के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों का काफी पुराना ठिकाना बरामद हुआ है। मोतबर जराये से खास इत्तला मिलने पर गुंडोह पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई थी। गुंडोह पुलिस स्टेशन हदूद में आने वाले खसोड़ी चांदसार के जंगल में कमीनगाह पाई गई, जहां जंग आलूद हथियार मिले। एक UBGL बैरल, एक ग्रेनेड, एक RPG शेल और 25 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर मिले हैं। UBGL में इस्तेमाल होने वाले आले भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद FIR दर्ज कर ली गई है और जांच का अमल शुरू कर दिया गया है। जिस इलाके से असलहा और बारूद मवाद बरामद हुआ है, बारूदी मवाद वो पूरी तरह सुनसान है और घने जंगलात से घिरा हुआ है। माजी में मिलिटेंसी की अरूज के दिनों में ये मिलिटेंटों के छुपने की जगह थी। गुंडोह पुलिस और 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने यह कार्रवाई अंजाम दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की
चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने बाबा क़यामुद्दीन ऋषि के ज़ियारत का दौरा किया। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहश असगर के अलावा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वकील कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर, महकमे सियाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेद रहमान, बाबा ऋषि वक्फ के CEO और दीगर तमाम महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की ज़ियारत के आसपास लोगों और ज़ायरीन के दरपेश मसाइल और मुश्किलात का जायजा लिया गया। दौरे के बाद यहां एक मीटिंग भी मुनक्किद हुई जिसमें तमाम कामकाज का जायजा लिया गया और बाबा क़यामुद्दीन ऋषि की ज़ियारत की बेहतरी के लिए मीटिंग में मौजूद तमाम महकमों के अफसरान के साथ तबादला ख्याल हुआ। दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि बहुत जल्द ज़ेर तकमील प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने ज़ायरीन से अपील की कि ज़ियारत को साफ और शफाफ रखने में ताउन दें। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो सिर्फ वक्फ के लिहाज से तो है, लेकिन यहाँ जितने काम करने हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए भी होने हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होना लाजमी है कि वक्फ के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करे ताकि जो हमारे ज़ियारतें हैं और दरगाहें हैं ये खूब से खूब तर और जो लोगों की शिकायतें रही हैं आज तक, यहाँ पे जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो ज़ायरीनों की तकलीफ है वो दूर हो जाए। यहाँ पे जल्द अज जल्द जो फुकदान है वो ख़त्म हो जाए कि जब आप ज़ियारत गाहों पे आते हैं आप ज़ियारत गाहों में पाकीज़गी का ख्याल रखिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए। हमारा इरादा है कि हम उनको अच्छा से अच्छा माहौल फराहम करेंगे, लेकिन उन पे भी एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो साफ सुथरे माहौल को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर में उर्दू के मशहूर शायर, टीवी पर्सनालिटी और अदाकार अब्दुल क़य्यूम सागर सहराई इंतकाल कर गए हैं। तवील अलालत के बाद उन्होंने श्रीनगर के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 70 बरस के थे। सागर अपनी उर्दू और कश्मीरी शायरी के लिए मशहूर थे ही, साथ ही उन्होंने 50 टीवी सीरियल में भी काम किया था। डीडी काशर के सीरियलों के अलावा वेब सीरीज भी कर चुके थे। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा में भी वो काम कर चुके हैं। आज सुबह सवेरे सोशल मीडिया पर सागर के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मंजर आम पर आई तो अदबी हलकों में सदमे और गम की लहर दौड़ गई। इनके मैयत को इनके आबाई शहर लाया गया था और भदरवाह के एक कब्रिस्तान में इन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। यहाँ सैकड़ों लोग सागर की मौत पर सोग मनाने के लिए जमा थे। मुझे सागर सहराई कहते हैं। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के उस खूबसूरत इलाके का रहने वाला हूं जिसे उर्फाम में भदरवाह कहते हैं और जिसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। लड़े इससे हमें फुर्सत नहीं है। हमारी जंग का मकसद जमी है। यहाँ के या वहां के आदमी हैं। करुणा के निशाने पर सभी हैं। कोई भी हो लहू ये चूसता है। अगर हूँ मगर छलका नहीं हूँ, अकेला अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ। तो इंसानियत का शैदाई एक सागर है, वो भी सहराई। आलम इंसानियत आजकल जिस मुसीबत, जिस अजाब से जूझ रही है, किसी कयामत। बस्ती बहरे लोग, हम तुम सब बेचारे लोग, कैसे कैसे चेहरों को पहनाते हैं सहरे लोग। मैं समझता हूं कि सागर साहब का इस दुनिया से जाने के बाद शायरी की दुनिया में एक बहुत बड़ी खला पैदा हो गई है। ये एक अजीम शख्सियत है। खासकर शायरी की अगर बात करूं तो मैं समझता हूं कि मौजूदा दौर में पूरे हिंदुस्तान में जो कोई अच्छे शायरों में अगर शुमार हो तो सागर साहब जो थे एक बड़ा नाम था। तो इससे जाने के बाद हमारे अदब की दुनिया में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है, क्योंकि अदब के मैदान में वो एक अजीम हैसियत के मालिक थे। मैं महकमा तालीम की तरफ से, पूरी टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से ताज़ियत का इजहार पेश करता हूँ। इसने लिखती खिज़ा हमारे नाम
नाम उसके बाहर की जाए। अपने इलाके से उन्हें इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि उन्होंने कभी इस इलाके को छोड़ना गवारा नहीं किया। तो बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है अदब की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में अब्दुल क़य्यूम सागर सहराई साहब के जाने से, जिसको पुर करना शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि एक पहचान थी वो यहाँ की, इस इलाके की। उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो उर्दू शायरी हो, कश्मीरी शायरी हो, या जम्मू कश्मीर को एक अलग पहचान दिलानी हो अदाकारी। अदब के मैदान ने वादी चनाब का वो जौहर कमाल खो दिया है जिसे सागर सहराई कहा जाता था। उनकी बेवक्त मौत पर पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर सोग मनाया जा रहा है। कई समाजी सकाफती तंजीमों और जम्मू कश्मीर के कई शायरों ने इनके इंतकाल पर इजहार दुख किया है और मरहूम के अफराद खाना से इजहार ताज़ियत किया है। करते थे गूंगी बस्ती बहरे लोग, हम तुम सब बेचेहरे लोग, लेकिन सागर भाई का अपना एक चेहरा था, खूबसूरत चेहरा, दूर से पहचाने जाने वाला चेहरा। इसी तरह उनकी आवाज, उनका लहजा दूर से पहचाना जाता था। एहतिजाज था जिसमें मोहब्बत थी, जिसमें खुलूस था, जिसमें तकरार थी, और जो अपनी बात सुनाने के लिए जी बढ़कर कोशिश करता था। और हम सुनते थे, अब कहाँ ढूंढे, किसे सुने और किसे सुनाए। सागर सहराई को अल्लाह ताला ने लहन दाऊदी से नवाजा था, जिसकी बदौलत से वो मशायरों पर छा जाते थे। वो एक हरदिल अजीज उस्ताद की हैसियत से भी मशहूर हैं और इकबाल बज़्म अदब बदरवा के बानीकारों में से भी। सागर सहराई ज़िली, रियासती और कौमी सतह के कई मशायरों में शामिल हुए और उन्हें मुल्क के अच्छे उर्दू शायरों, अदीबों, महक़िक़ों और उस्तादों के साथ ताल्लुकात थे। बहुत खुश आवाज़ और उसकी कैसेटें भी हैं, अपनी उसने गज़लें बहुत खूबसूरती से गाई हैं और यानी महफ़िलों की जान था वो। तो उसके बेवक्त उसकी मौत जो है वो हम सब के लिए एक सदमे का बायस है। उर्दू शेर व अदब और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि वो मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम से नवाजे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। श्रीनगर में आज सूफी मजलिस का एहतमाम किया गया। सूफी विरासत के उन्वान से मुनक़िदा इस मजलिस में किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई और सूफी ख्यालात और मौजूदा दौर में सूफीज़्म के पैगाम को आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल की जानिब से मुनक़िदा इस मजलिस में डिविजनल कमिश्नर PK पोले भी शरीक थे। इन्होंने सूफी रिवायात और सूफी लिटरेचर को आम करने की बात कही। कश्मीर का लोकल वरासत है, उसको अपना मकाम है और उसको बिल्कुल गलत अंदाज से नहीं देखा जाता है। तो उसको जो आज जिंदा हो रही है और जो बड़े बड़े राइटर्स जो इस पे किताबें लेके आ जाए, इससे पहले हमने 111 किताबें और उसके बाद 53 किताबें और आज ये तकरीबन 15-20 किताबियों का जो यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, मेरे ख्याल में ये इस तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी ये है। और मैंने ये भी बोला जो हमारा हजरत बल है, तो हजरत बल को अगर सब्ज़ हयात जो सब्ज़ कलर है, क्यों सियासत के लिए सब्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए सब्ज़ को न रखा जाए। काफ़ी किताबें हैं जो अच्छाई पर, पॉजिटिविटी पर भर देती है, ना सिर्फ नेगेटिविटी या फिरका पसंदी, उसके ऊपर उठ करके जो है वो बात करती है ह्यूमैनिटी की, वो बात करती है स्पिरिचुअलिटी की, वो बात करती है कश्मीरियत की। ऐसे किताबों को हमने प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी जो है और भी अच्छी तरीके से ये इसको जाने और जो 1-2% अनासिर है वो भी यहाँ से ख़त्म हो। नगीनी कल्चरल फाउंडेशन बडगाम की जानिब से करीम शुरा बडगाम में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कई शोरा व कलमकारों ने हिस्सा लिया। वहीं कई मकामी और शायरी की दुनिया में दिलचस्पी दिखाने वालों ने भी शिरकत की। इस दौरान मारूफ शायर फ़कीर अहद भट्ट की किताब चश्मा आब हयात का रस्म इजरा हुआ। इस तकरीब की सदारत नामवर ब्रॉडकास्टर व अदीब अब्दुल अहद फरहाद ने की, जबकि सैयद हुमायूं कैसर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। किताब पर नगीनी कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन
शबनम बशीर और सहाफ़ी रशीद राहल ने तबसरे पेश किए। इस दौरान महफिल समा भी मुनक़िद हुई, नात ख़्वानी भी हुई और शोरा ने अपने अशार पढ़कर सामईन को महजूज किया। बात बताऊंगा, ये सकाफती से ज़्यादा रूहानी प्रोग्राम है, ये रूहानती प्रोग्राम है। इसमें सूफ़ी शायरी की बात है, एक सूफ़ी का कलाम है जो आज इजरा हुआ है और जो खुदा दोस्त इंसान है उसकी बात है। ये हमारी सकाफत का हिस्सा है, ये भी सही है कि सूफियत सकाफत का हिस्सा है और इनके ज़िंदगी का जो तौर तरीका है, जो इनकी किताब में भी बहुत कुछ लिखा है लाल साहब के, अगर इंसान पढ़े और इस पे अमल करे तो बहुत फ़ायदा होगा। हकीकत है कि हमारा कश्मीरी शायरी का जो सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा है वो सूफ़ी शायरी है और हमारे सूफ़ी सब रूहानी बुज़ुर्ग हुए हैं। आप शम्स फ़कीर की बात करें, ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी की बात करें, किसी भी शायर की बात करें, वो रूहानी बुजुर्ग थे, उनके कमालात आज भी गिनवाए जाते हैं। मानसबल ड्रामेटिक्स सफापुरा ने जिला गांधरबल के मानसबल में एक रोज़ा थिएटर प्ले राइटिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया। ड्रामों में दिलचस्पी खो चुके लोगों को फिर थिएटर से जोड़ने के मकसद से वर्कशॉप रखा गया। वर्कशॉप की सदारत मारूफ शायर और ब्रॉडकास्टर निसार नसीम ने की। इनके साथ नामवर ड्रामा निगार भी मौजूद थे। उभरते हुए प्ले राइटर्स को प्ले राइटिंग की जदीद मौज़ूआत और तसव्वुरात के बारे में रहनुमाई करने के मकसद से इस वर्कशॉप का नज़्म किया गया था। निसार नसीम और दीगर नामवर ड्रामा निगारों के मुताबिक आजकल मुनक़िद होने वाली सकाफती और रिवायती तक़रीबात के दौरान पुराने ड्रामों की नुमाइश से लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी है। शफीक कुरैशी, अब्दुल रशीद गमगीन, गुलशन बरदानी, शाहिद शब्बीर और दीगर नामवर ड्रामा निगारों और शायरों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। अमलन मैं महसूस कर रहा हूँ कि कश्मीर में कैसे प्रैक्टिकली थिएटर लिखा जाए, थिएटर के लिए लिखा जाए, वो बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ अभी भी हम वही घिसी-पिटी थीमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पर बहुत कम लोग लिखते हैं। हमारी कोशिश है कि जो थीमें आजकल जो हमारे रेलेवेंस है, जिन थीमों की जो हमारे इर्द गिर्द बीत रही है, उसको लोगों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि थिएटर में जो है एक नई रंगत आ जाए, एक नयापन आ जाए। वो जो बोरियत लोग महसूस कर रहे हैं कि वही पुराने प्लेस रिपीट होते रहते हैं, तो उनमें जो थिएटर शायकीन है, थिएटर को देखने वाले हैं, वो कम ही थिएटरों में चले जाते हैं, वो कम ही ऑडिटोरियम्स में चले जाते हैं। क्योंकि पुराने प्ले ही रिपीट हो रहे हैं, नए प्लेस नहीं आ रहे हैं जिनमें नई बात हो, नया ट्रीटमेंट हो वगैरह। तो ये नए प्लेस हम कैसे लिख सकेंगे, उनमें किन चीज़ों को ख्याल रखना है, किन बारीकी को देखना है, तो वो सिखलाना चाहते थे हम आज की इस वर्कशॉप में। और उम्मीद है कि काफ़ी लोग आए हैं जो नए राइटर्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, नए प्लेस लिखना चाहते हैं। जब नए लोग आएंगे तो नई सोच सामने आएगी ही। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर संजीव पी साहनी ने वालिदैन को मुफीद जानकारी फराहम की है। उनका कहना है कि असातिज़ा और वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को नंबरों की दौड़ में झोंकने के बजाय बच्चों के रवैये पर ज्यादा तवज्जो दें। आज जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए साहनी ने कहा कि उनका इदारा जम्मू के तकरीबन 30 स्कूलों के 250 टीचरों को ट्रेनिंग देने जा रहा है। जिस्मानी वर्जिश और मेडिटेशन के जरिए स्टूडेंट्स के तर्ज अमल में मुस्बत तब्दीलियां लाने की गरज से टीचर्स को तरबियत फराहम की जाएगी। है कि बच्चों के बिहेवियर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके मार्क्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चे का बिहेवियर अच्छा है, मार्क्स अपने आप आएंगे। और ये बहुत एक रिसर्च डॉक्यूमेंटेड है कि जिनका इमोशनल कोशेंट अच्छा होता है, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन दिस अर्थ। म्युनिसिपल कमेटी देवसर में आज सदारती ओहदे के लिए इंतखाबात अमल में लाए गए, जिसमें बीजेपी के मुश्ताक अहमद भट्ट को सदर मुंतखब किया गया, जबकि नायब सदर के इंतखाबात भी अमल में लाए गए। साबिक सदर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के चलते ये इंतखाबात अमल में लाए गए। नौमुंतखब सदर ने देवसर की फलाह बहबूद के लिए काम करने का अज़्म दोहराया। उसके लिए भी काम करूंगा, जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसके लिए भी मैं उससे ज्यादा काम करूंगा। और जो भी मेरे काउंसिलरों की एक्सपेक्टेशन मुझ पे है, मैं
हर काउंसलर का काम जो भी उनकी वार्ड में नीड होगी हर वार्ड के लिए मैं काम करूंगा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पैदा होने वाला ठोस कचरा माहौलियात के लिए हमेशा से ही एक संगीन खतरा रहा है और बालतल बेस कैंप और मुकद्दस गुफा के रास्ते पर कचरे को ठिकाने लगाना इंतजामिया के लिए काफी मुश्किल रहता है। इस साल तारीख में पहली बार श्री अमरनाथ जी यात्रा माहौलियाती एतबार से पायदार बनाई गई है। लैंडफिल का मसला दूर करके सफाई और कचरे के इंतजाम के नए प्रोटोकॉल मुरतब किए गए हैं ताकि यात्रा को माहौल दोस्त और मुकम्मल तौर पर रूहानी नौयत का बनाया जा सके। जावेद भट्ट की एक खास रिपोर्ट। इस बार पोल्यूशन फ्री यात्रा का प्लान कर लिया है कि जो भी ट्रैश होगा उसका हम साइंटिफिकली डिस्पोज करेंगे, इको फ्रेंडली हमें बनाना है ये यात्रा। तो इसके लिए पूरे इंतजाम कर चुके हैं हम। तो एक हमने हमारे पास कंपोस्ट मशीन आई है, वैली मशीन्स आई है जिसका कि जो भी गार्बेज होगा उसको साइंटिफिकली डिस्पोज होगा और यहाँ पे किसी भी जगह गार्बेज नहीं होगा। देही तरक्की के महकमे ने स्वाहा रिसोर्स मैनेजमेंट को यहाँ सैनिटेशन और कचरे के ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये कंपनी जदीद तरीन तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट की खिदमत फराहम करती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर के साबिक तलबा ने ये कंपनी कायम की है। कंपनी के सीईओ और को फाउंडर के मुताबिक मुल्क की तारीख में ये पहला मौका है कि किसी मजहबी यात्रा को लैंडफिल के मसले से पाक बनाया जा रहा है। कंपनी ने बेस कैंप से मुकद्दस गुफा तक 1200 स्टेशन पर 300 कारकुनों और मुलाजमीन के तैनात करते हुए 12 मशीनें नस्ब की हैं। बालतल और पहलगाम रूट्स पर मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी मशीनों से ठोस कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। लंगरों से बचे खुचे मादों को खाद में तब्दील किया जा रहा है ताकि स्वच्छ यात्रा यकीनी बनाई जा सके। इस यात्रा के दौरान जितना भी कचरा पैदा होता है उसको पूरा प्रोसेस करें और उसको लैंडफिल में ना जाने दें। तो इस तरीके से ये एक जीरो लैंडफिल यात्रा का एक अनुपम एग्जाम्पल बनेगा और ये पहली बार हो रहा है भारत में कि कोई धार्मिक यात्रा को हम पूरी तरीके से कचरा मुक्त कर रहे हैं और पर्यावरण पे उसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं आएगा, बल्कि इस कचरे से हम खाद बनाएंगे और साथ में जो इनऑर्गेनिक कचरा इसमें से निकलेगा हम उसको रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अगरचे ये तमाम उमूर इस कंपनी के लिए बड़े चैलेंज हैं क्योंकि 13,000 फुट की बुलंदी पर वेस्ट मैनेजमेंट का अमल मुश्किल होता है। कंपनी ने सिर्फ कस्बों में मुनक़िद होने वाली तक़रीबात में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम अंजाम दिया है, लेकिन कंपनी के मुंतज़मीन एक मिसाल कायम करने के लिए पुरएतमाद नजर आते हैं। कई सारी ऐसी जगह जहाँ रोड्स नहीं है, कई सारी ऐसी जगह जहाँ पर रुकने का साधन नहीं है, बिजली भी नहीं है, वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट करना मतलब हम लोग 13,000 फीट तक की एल्टीट्यूड पे जाकर के वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हुकूमत के मुताबिक इस साल तवक्को है कि तकरीबन 8 लाख अकीदतमंद यात्रा करेंगे और यात्रियों की अब तक की सबसे ज्यादा तादाद को देखते हुए हमवार व पुरअमन तरीके से यात्रा को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के दौरान मुंतज़मीन माहौलियाती हसासियत को भी तरजीह दे रहे हैं और साइंसी तरीके से ठोस कचरे को ठिकाने लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल के बालतल बेस कैंप से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। दलाई लामा ने लेह में आज मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा किया। वो लेह के गोनपा और लेह की जामा मस्जिद को भी गए, साथ ही इमाम बाड़े में भी मुंतज़मीन से मुलाकात की। मुसलमानों और बौद्धों के बीच इत्तेहाद का मुजाहरा करने के मकसद से उन्होंने ये इक़दामात किए। कोनपा सोमा में उनके अकीदतमंदों की बड़ी तादाद इस दौरान शरीक रही। सभी ने दलाई लामा का वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने फिरका वाराना हम आहंगी और इत्तेफाक से मिलजुल कर रहने पर जोर दिया। करगिल में 3 रोजा स्वानिधि महोत्सव अख्ताम पजीर हो गया है। लद्दाख यूटी अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कमेटी करगिल के इश्तराक से यहां यह नज़म कराया गया था। वज़ारत हाउसिंग और शहरी उमूर ने इसके लिए ताउन फराहम किया था। आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर्स मेले का शानदार जश्न के साथ अख्ताम हुआ है। इस मौके पर मकामी तौर पर तैयार करदा ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। सीईसी फिरोज खान ने कहा कि सेहतमंद जिंदगी के लिए ऑर्गेनिक फूड को तरजीह देना चाहिए।
इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें काम करने के अच्छा काम कराते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से सजाया इन एनसी वालों ने, तो सर हम भी इनके अंडर में आते हैं, ज़बरदस्त करके हमने भी जो है चिकन बिरयानी को सजा के लाया है सर। तो यहाँ पे जितनी भी दुकानें लगी हैं, तुर्जी की, बिरयानी की, चाउमीन की, मोमोज की, तो ज़बरदस्त तरीके से सबने बनाया, सुबह से मेहनत करके। लद्दाख यूटी के हुज्जाज का पहला काफिला आज वतन वापस आ गया। ये लोग सफर महमूद से हज बैतुल्लाह मुकम्मल करके करगिल सेहत और सलामती के साथ वापस पहुंच गए। इस नूरानी सफर से वापस आने पर लोगों ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दराज से मिनामर्ग तक हजारों लोग मर्द और ख्वातीन जगह जगह इन हुज्जाज के इस्तकबाल करने को खड़े थे। दरूद व अज़कार के साथ अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों के साथ 3 बजे यह काफिला दराज से करगिल की तरफ रवाना हुआ। कोविड वबा के बाद इस बार दराज से बहुत ज्यादा लोग हज पर गए थे। जम्मू कश्मीर के तालिबात ने CBSE में बेहतर मुजाहरा किया है। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट लड़की रीतम गंजो ने साइंस स्ट्रीम में 98% नंबर हासिल किए हैं। रीतम की कामयाबी पर वालिदैन, रिश्तेदार और मोहल्ले के दोस्त जश्न मना रहे हैं। लोग रीतम के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। रीतम अपने मामू और खानदान के दीगर अफराद को अपनी कामयाबी का क्रेडिट देती है, जिन्होंने इसके वालिदैन की गैर मौजूदगी में इसकी मदद की, क्योंकि वो कश्मीर में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मैं टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे टीचर्स, आज तक के जितने भी टीचर्स रहे हैं मेरे ट्यूशन टीचर, मेरे स्कूल के टीचर्स, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर अभी इस शो पे अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं फ्यूचर में मैं एक सर्जन बनना चाहती हूँ एंड मैंने अभी अपना नीट का एग्ज़ाम भी दिया है, तो आई वांट टू बी अ सर्जन। इसने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन टर्म 1 में थोड़ा सा इसको गड़बड़ हुआ, क्योंकि बहुत सीवियर कोविड हुआ था। उस वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो भैया कहते थे कि भाई हमें तेरी पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें तो बच्चा चाहिए। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे पाई उस दिन पढ़ाई पे, लेकिन टर्म 2 तो इसने अच्छा किया। भाई मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन टीचरों ने इनको पढ़ाया वहाँ पर, और हम फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा। हीरानगर के छोटे से गांव टोकल में कशिश राजपूत ने CBSE 12वीं इम्तिहान में 95% नंबरात लिए हैं, जिसके बाद कशिश को मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी है। कशिश ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपनी कामयाबी का पूरा सेहरा अपने वालिदैन और स्कूल को दिया। वो डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत करने का जज्बा रखती हैं। तो मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी 95% आई हैं, सभी मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। तो इसमें ऑब्वियसली सबका रोल बहुत ज़्यादा है। मेरे पेरेंट्स की, उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। स्कूल का भी काफ़ी रोल है, उन्होंने मतलब कोरोना के समय में मेरी स्कूलिंग हुई है। जो बच्चे हैं वो देखकर कि यूट्यूब से भी अपनी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, उसके बाद 12th में भी उन्होंने 95% लिए। स्टडी सारी ऑनलाइन ही हुई। कितनी खुशी है सर आज? मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाना, जो मोदी जी का नारा है, उस पर सभी अमल करें। समाज को यही कहूंगी कि बेटियों को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए और इनको खुले आसमान में उड़ने दीजिए, इनके पंख को काटिए। जैसे अब बेटी का सुनते हैं कि बेटी है तो उसको गर्भ में ही खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटियों को दुनिया में आने दो, वही आज आपका नाम रोशन कर रही है। और हमारी बेटी ने, मैं कहूंगी कि इसने इतना नाम रोशन किया कि मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ। तो समाज से यही कहूंगी कि बेटियों को फुल सपोर्ट कीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ख्वातीन विंग का एक रोजा कन्वेंशन डाक बंगला सोपुर में मुनक़िद हुआ। सदारत रियासती सूबाई सदर शमीमा फिरदौस ने की। पार्टी कारकुनों से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए शमीमा फिरदौस ने कहा कि अवाम को बीजेपी हुकूमत की उन पॉलिसियों से आगाह होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ हैं। जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तो हम उसलिए लोगों को खबरदार कर रहे हैं। जो उनको मालूम है जो हमारे साथ हुआ है 5 अगस्त को, तो हम वो भूले नहीं हैं और न ही कश्मीरी लोग वो भूल जाएंगे कभी। जो 370 जो हमारा
जो हमारी पहचान थी, जो हमारी इनफरादियत थी, जो हमारा तशख़्ख़ुस था, जो हमसे छीन लिया गया रातों रात चोरों की तरह, डाकुओं की तरह उस पर डाका ज़नी की। तो इसलिए हमारा घर घर जाना ज़रूरी है। फिर देखते हैं बीजेपी का जब मूड बनता है, ये उन पर डिपेंड करता है कि क्योंकि वो जो चाहे वही तो। नगरपुरा सोपोर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक लेवल मीटिंग मुनक्किद हुई। डाक बंगला सोपोर में मीटिंग का इनेकाद किया गया था। जोनल सदर जावेद अहमद डार, जिला बारामूला के सदर डॉक्टर सज्जाद शफी ओडी, शमीमा फिरदौस और म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर के सदर मसरत रसूल कार, इरशाद कार के अलावा नगरपुरा और संग्रामा के ब्लॉक सदूर के साथ एनसी के कई कारकुनान इस मौके पर मौजूद थे। ब्रेक के बाद एक फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने वादी के मेवा काश्तकारों पर जोर दिया है कि वो सेब की दर्जाबंदी को बरकरार रखें ताकि बेहतर मुनाफे के लिए दूसरी रियासतों में काश्त किए जाने वाले मेवों का मुकाबला किया जा सके। वो एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनरल इजलास आज जो फ्रूट मंडी का था उसमें ट्रेडर्स थे, ग्रोवर्स थे, बायर्स से सबको बुलाया था ताकि इस साल का जो सीज़न हमारा आने वाला है और बाकी जो हमारी फ्रूट मंडी के मसले है उस पर जानियाबी देने के लिए हमने उनसे बात की है। और खासकर जो हमारे बारदाने का इशू है, इस टाइम जो बारदाना हाई रेट में जा रहा है, मैं आपकी वसात से एलजी साहब से अपील करता हूँ कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और जो कार्डबोर्ड पे हमारा जीएसटी लगता है उसको कम किया जाए। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग ने आज पानीपुर बडगाम में तामीर की जा रही नई फ्रूट मंडी का दौरा किया। इस दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हॉर्टिकल्चर और दीगर अफसरान मौजूद रहे। वशिष्ठ महाजन ने फ्रूट मंडी में जारी कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तामीर का काम काफी तेजी से जारी है और आने वाले सितंबर की 30 तारीख तक काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फ्रूट मंडी के बनने से बडगाम के काश्तकारों को काफी फायदा मिलेगा। 2022 को हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ इसमें ब्लैक टॉपिंग का पार्ट नहीं होगा, बाकी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी मैंने इंजीनियरिंग विंग को कहा है कि हम इसको इनिशियली स्टार्ट करेंगे, शायद सीज़न के बीच में शुरू होगा या सीज़न के लेटर पार्ट में होगा, लेकिन अगले सीज़न के लिए ये पूरी तरीके से तैयार होगा। तो ये एक सेंट्रलाइज प्लेस बन जाएगी इस पूरे इलाके के जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं उनके लिए अपना माल ला के डिस्प्ले करने के लिए और बेचने के लिए। एक तो लोगों को यहाँ से या चरार या श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा जो लोकल प्रोड्यूस है वो टाइमली पहुँच जाएगी। महकमा ज़राअत और हॉर्टिकल्चर कुलगाम की तरफ से आज डाक बंगला कुलगाम में एक रोज़ा जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। इस दौरान डीसी कुलगाम ने माहिरीन पर जोर दिया कि वो मेवाजात और सब्जियों को हो रही बीमारियों की रोकथाम के हवाले से जानकारी फराहम करें। माहिरीन ने कहा कि उन्होंने एहतियाती तदाबीर उठाने के लिए एडवाइजरी जारी की है जिस पर अमल पैरा होने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से, एनफोर्समेंट विंग पूरी जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे थी। तो यही फैसला लिया गया कि फार्मर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो जाती है इसकी वजह से कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। जमींदारों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा कोई नॉन स्टैंडर्ड मिस ब्रांडेड आता है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होती है। अभी इस साल हमने अप्रैल से आज तक 4,96,000 रुपया फाइन किया है कंपनीज से, जो कि इसी रिलेटेड था जो हमारे मिस ब्रांडेड या नॉन स्टैंडर्ड आते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की जानिब से पुलवामा में नौजवानों को जमहूरी अमल का हिस्सा बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। पार्टी की जानिब से पुलवामा से यह अमल शुरू किया गया। इस मुहिम के जरिए नौजवानों को मुख्तलिफ समाजी बुराइयों से दूर रखने और इन्हें सियासी अमल का हिस्सा बनाने की पहल की जाएगी। पार्टी की जानिब से हर एक पोलिंग बूथ से 10 नौजवानों को इस अमल में शामिल किया जाएगा। गाँव में 1 बूथ 10 यूथ का एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम हर बूथ के लिए हम 10 यूथ को ज्वाइन कराते हैं और करवाना भी है। हमारी पार्टी का जो मंशूर है कि इसमें ये हमने रखा है कि ये पार्टी ड्रग एडिक्शन, करप्शन फ्री और वायलेंस फ्री जम्मू कश्मीर को बनाना है। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से टूरू अनंतनाग में चनार वुमेन्स क्रिकेट लीग का एहतमाम हुआ। इस लीग में जनूबी और शुमाली कश्मीर अजला के 12 ख्वातीन टीमें शिरकत कर रही हैं। लीग का इफ्तिताह
19RR के कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह ने दीगर मुतालिकीन के हमराह किया। इफ्तिताही मैच अनंतनाग और GDC कोकरनाग के माबैन खेला गया, जो अनंतनाग ने अपने नाम कर लिया। फौज के मुताबिक इस लीग का मकसद कश्मीर में ख्वातीन क्रिकेट को फरोग देना और ख्वातीन को अपनी सलाहियतें उभारने के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। गुजारे 19RR का, जिन लोगों ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, और इससे दो फायदे हैं। एक तो हमारी जिस्मानी सेहत भी ठीक रहती है, और दूसरी जो लड़कियां घर पे हैं उन लोगों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप आ जाए, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें। बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जब इंसान स्पोर्ट्स खेलता है तो उसको एक्सपोजर मिलता है, और एक्सपोजर के साथ साथ वो घर से जब बाहर निकलेगा तो उसको नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलेगा, और उसकी वजह से अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, कुछ सोसाइटी की वजह से प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें वो टैकल कर सकते हैं। एक्सट्रीम ऑफ रोडर्स कश्मीर ने श्रीनगर से वाड़ौन किश्तवाड़ तक गाड़ियों की एक्सपेडिशन का आगाज किया, जिसे ADC श्रीनगर हनीफ बल्खी ने भारत पेट्रोलियम के दीगर आला अहदेदारों के साथ झंडे दिखाकर रवाना किया। इस मुहिम का मकसद जम्मू व कश्मीर के गैर दरियाफ्त शुदा मकामात को तलाश करना है, ताकि इन मकामात को सही तरीके से उजागर किया जा सके और मुस्तकबिल में एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग देने में मदद मिले। परमिशन दे दी, हमने भी परमिशन दे दी। जो छोटा मोटा हम सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और ये कि बेसिकली प्रमोशन है। ये ऐसी एक्टिविटी है जो कश्मीर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ बर्फ़ होती है और 4x4 व्हीकल्स की ज़रूरत है, फिर जो बर्फ़ होती है तो गाड़ी यहाँ से वहाँ तक नहीं चली जाती है। जहाँ तक हमारे जो सियाह लोग, टूरिस्ट लोग यहाँ पे हमारे गेस्ट जो आते हैं, तो जहाँ तक मेरे एक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक बस उनके ज़बान से गुलमर्ग, पहलगाम और सोनामर्ग देखा है, सुना है। हम चाहते हैं कि इससे हम इसको अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर पूरा, और हमारा मोटो जो है खाली कश्मीर नहीं है, बेसिकली में हमारे सारे मेंबर जो है ज़्यादा कश्मीर से है, लेकिन और हमारा J&K है, पूरा J&K, इसमें हम जम्मू को भी एक्सप्लोर करेंगे। और इसी के साथ कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान विशाल आजम को दीजिए इजाजत। आदाब।